Baba said, in Baba's remembrance, when to offer bhog to Baba, ओम शांति। Baba जब बाबा को भोग said some स्वीकार words कराने to गए us, तो बाबा हम सबको accepting इन्वोक कर bhog रहे with थे lot of love. और बहुत बहुत प्यार से बाबा ने भोग And स्वीकार Baba किया was as if giving drishti, और जैसे बाबा and दृष्टि as दे if रहे थे, speaking through drishti. लेकिन साथ ही साथ दृष्टि से I think you all must बात have भी कर रहे थे। experienced what is saying things through drishti also, right? जैसे बाबा क्या कह रहे हैं दृष्टि द्वारा। And after few moments, Baba said that और कुछ पलों के बाद फिर बाबा ने कहा, as the mouth, you speak through the mouth, you also speak through the eyes. ये तो अवश्य है कि So मुख से आप like बात as करते you हैं, लेकिन नैनों speak से through भी the eyes. बातचीत होती है। तो क्या Like कह रहे as थे Baba बाबा, said, this किस language भाषा में बात करते of हैं? love, तो ये knowing your भाषा experiences. प्यार की है, स्नेह की है When और you अनुभव speak की है। your experiences जब in आप बात words, करते but हैं other is तो whatever आपका is your अनुभव शब्दों experience, में कहते हैं, you are able परंतु to वैसे भी जो अनुभव communicate है that experience through the eyes. वो अनुभव So today Baba was नैनों saying से, that नेत्रों as से much या आंखों से दिखाई पड़ता है। you are close to Baba, जितना जितना आप in बाबा Hindi के we call नजदीक it है, Samip, very close to हिंदी में Baba. हम कहते हैं बहुत But नजदीक है, Baba समीप है said बाबा there के, will be two experiences. One is everything will उतना ही be बाबा sahaj, कहते हैं कि दो अनुभव होंगे। sahaj, everything will be सब sahaj. कुछ बहुत सरल सहज So we होगा। want in our life everything to be easy. हम चाहते हैं ना कि But the हमारे most जीवन में सब कुछ possible सहज हो, सरल हो। near to Baba. और And दूसरा that's why Baba said समीपता your का ये, nature will also be very serene and very simple. और जो आपका स्वभाव है वो भी बहुत सरल होगा। तो Sahaj and समीप Saral. रहने से These two सहज qualities you will अनुभव होगा develop सब कुछ और as सरल much you are स्वभाव close होगा। to Baba. जितना आप बाबा के Baba, नजदीक रहेंगे, that समीप was रहेंगे, my उतना ही ये touching moment सहज when और Baba सरल, said that ये दो गुण दिखाई all the देंगे। children are तो making बाबा good ने कहा efforts and सभी बच्चे बहुत अच्छा day by पुरुषार्थ day कर they रहे are हैं। growing and feeling वो that पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ they रहे are हैं, free from अपने आप को anything भरपूर except कर one रहे pull. हैं And there is only one pull, and that is Baba. और बस एक We ही are खींच still है in अभी that और वो stage of है बाबा। perfection. और हम अपनी But परफेक्ट as much स्टेज you को start जरूर feeling प्राप्त pull करेंगे। from Baba, लेकिन you जितना will आपको also बाबा start के feeling pull समीपता की from the खींच stage of होती है, perfection. That means उतना ही आपको you want to अपने go परफेक्ट higher, संपन्न elevated, स्वरूप की तरफ भी खींच and होती है। as much as possible, और you जितना are हो very सके detached and lovely. आप डिटैच So और Baba लविंग said you रहते all हैं। must be experiencing तो बाबा ने closeness कहा to आप Baba, सब भी ये अनुभव कर रहे getting होंगे ना, pull from your stage of perfection. बाबा So के we want समीप to भी है और share that. अपनी जो परफेक्ट स्थिति है उसके भी So नजदीक Baba, है। we are planning to have तो हमने कहा जी बाबा, April as the हम month प्लान of कर रहे Man हैं Manabhav. अप्रैल मास So say में that मन मना भाव Man का पुरुषार्थ Manabhav, करने के लिए। you begin your journey with Man Manabhav. तो बाबा ने कहा मन मना भाव And से आप अपनी so यात्रा Man शुरू Manabhav. करते हैं। So it will be a good experience. And then तो ये बहुत अच्छा अनुभव। Baba said that each one of you must बाबा be ने कहा कि हर एक ये अनुभव कर रहा होगा कि कितना आप यज्ञ को बिलोंग करते हो और कितना आप बाबा को बिलोंग करते हो और कितना आप परिवार को बिलोंग करते हो। और बहुत ऐसी कई सारी आत्माएं आएंगी नजदीक जिनको ये अनुभव होगा कि हम जैसे बाबा को बिलोंग करते हैं, यज्ञ को बिलोंग करते हो और परिवार को बिलोंग करते हो। और फिर बाबा ने बहुत प्यार भरी, स्नेह भरी दृष्टि हम सभी को एक एक को दी। ऐसा हमें अनुभव कराया जैसे कि हम बाबा के बहुत समीप हैं। एक तो है कि हम अनुभव करते कि हम बाबा के समीप अनुभव करते खुद को, और दूसरा है कि बाबा अपने आप को हमारे समीप अनुभव करते हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। तो बहुत सुंदर अनुभव था। और फिर बाबा ने सभी के प्रति याद प्यार दी। ओम शांति। Om
और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि दिल की श्रेष्ठ भावना उसके प्रति होती। जैसे आपकी दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबद में आवाज करते हो ना, तो वही लौट के आपके पास आता। ऐसे जैसे पाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे नंबरवार ब्रह्मन आत्माएं होते हुए भी आत्मक प्यार अटूट है, अखंड है। वैरायटी चलन और वैरायटी संस्कार देख कर प्यार करते, तो वो अटूट और अखंड नहीं हो। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। क्या भी संस्कार हो, कैसी भी जलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का अटूट सारे कल्प में संबंध है। ईश्वरी परिवार समझाना सभी ने समझा। Om Shanti. Avyakt signals. April. Imbibe the virtues of sweetness and humility. Those who imbibe the virtue of sweetness become great here and also receive a status there. Everyone sees those who have sweetness with the vision of them being great. Every child should have the virtue of sweetness. It is only with sweetness that you will be able to glorify the name Madhusudan, Krishna the Sweet One. Those who have sweet honey with them achieve success in every task. Failure is erased from their life.
Om Shanti. Welcome to ओम our शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज 31 मार्च है और आज हम जो मार्च की सीरीज है उसका समाप्ति करेंगे, उसके अनुभव सुनेंगे और नई सीरीज भी शुरू करेंगे। You already know the topic as Didi mentioned. So after that, we'll start our new series. So please be with us. So now we will listen to Moini Didi. Om Shanti. ओम शांति। I'm sure that मुझे यकीन है कि आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं। मार्च मास में हम एक साथ रहे, बाबा के साथ रहे। हमारे जो पूर्वज दादियाँ हैं, खासकर हमारी 2 दादियाँ, जब कभी भी और अभी भी भोग जब ऑफर किया मार्च मास में, तो हमने देखा कि जैसे सभी दादियाँ वहाँ पर उपस्थित है, परंतु हम खास करके अपना फोकस जो है वो दादी गुलजार और दादी जानकी के ऊपर रख रहे थे। मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा और बहुत नजदीकता का अनुभव हुआ और समझ में आया कि उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, उन्होंने क्या ध्यान पर रखा, उन्होंने अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ किया जो वो उस संपन्नता की स्थिति तक पहुंच पाए। तो मुझे बहुत इंस्पायर की उनकी बातों ने। और जैसे दादी जानकी के लिए कहते हैं कि वो भगवान की साथी है, कंपेनियन ऑफ गॉड है। तो कैसे हमने मनन किया कि वो बाबा के साथ कैसे रहते हैं, लेकिन दूसरा कि बाबा ने कैसे उन्हें ये परमिशन या अलाउ किया कि वो मेरे नजदीक रह सके। हाँ, एक व्यक्ति की एनर्जी दूसरे व्यक्ति को कैच होती है ना। लेकिन समझो अगर कोई अशांत है, कोई ठीक से बात नहीं करता है, तो आप नहीं चाहेंगे ना कि वो आपके नजदीक रहे। लेकिन अगर किसी में आपके जैसी क्वालिटीज है, बहुत शांत है और बहुत श्रेष्ठ भावना है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो परिवार का प्यार है, तो जब वैसी वाइब्रेशंस होती है तो आप भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके नजदीक रहे। तो बाबा के साथ भी तो ऐसा है ना। एक तो है कि मैं बाबा के नजदीक रहना चाहती हूँ और दूसरा है कि बाबा चाहते हैं कि मैं उसके नजदीक रहूं। तो दोनों में अंतर है ना। बहुत सूक्ष्म है ये बात जो मुझे रियलाइज हुई है कि वास्तव में मैं क्या कर रही हूँ वो बहुत ही हद का पुरुषार्थ है, लेकिन जो बाबा हमारे लिए करते हैं वो बेहद का है। इसीलिए जब बाबा कहते हैं कि आप आओ 1 कदम और मैं 10 कदम आपके पास आऊंगा, तो ये हमारा अनुभव होना चाहिए ना जीवन का। तो इसीलिए ये जो कहा कि भगवान का साथी है या भगवान का रथ कहते हैं दादी गुलजार को, तो कैसे शिव बाबा ने अव्यक्त बाप दादा आते हैं और बहुत दादी गुलजार के नजदीक, उसकी आत्मा के बहुत नजदीक बैठते हैं। और दादी गुलजार को भी ऐसा ही अनुभव होता है जैसे कि स्नेह में समा गई है। तो उनकी जो दोनों की व्यक्तित्व की बात कहो तो एकदम जैसे सेम कहेंगे ना। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी बहुत अच्छे अनुभव हुए होंगे और हमें बहुत सूक्ष्म, बहुत शुद्ध, बहुत साफ, पवित्र ऐसी ऐसी हमें भावनाएं प्राप्त हुई है। ये सभी का अनुभव होगा, मैं समझती हूँ। ओम शांति। Sage Pusharati Bhavaka Varna
मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रबोधन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। This April, let us focus our mind on the One. Let us become Man Mana Bhava. We invite you to join us and absorb the elevated versions from Mohini Didi and collective meditations. Join us daily starting from 6 p.m. to 8:30 p.m. Eastern Daylight Time, Hindi series from 6:45 to 7 p.m. followed by English series from 7:30 to 8:30 p.m. with live translation in Hindi, Spanish, French, Portuguese, Thai, Tamil, Telugu, Chinese, Korean, and Nepali. Presented live on Zoom and YouTube. मन मना भव। Om Shanti. So, welcome to our new series, Man Mana Bhava. So simple, the one word. So, today we'll just hear from Didi तो about हमारी नई सीरीज है मन मना भाव और आज हम दीदी से सुनेंगे आज की टॉपिक के बारे में और कल से फिर हम सीरीज शुरू करेंगे। तो दीदी से पहले सुनते हैं इस टॉपिक के बारे में। Om Shanti. It is said in Gita that mind is our friend and mind could also be our enemy. How much गीता में कहा गया है कि मन आपका मित्र भी हो सकता है और मन आपका शत्रु भी हो सकता है। जितना हम मन को यूज कर सकते हैं उसे एकाग्र कर सकते हैं। हाँ, और एक तरीका बाबा कहते हैं कि मन के प्रति प्रेम हो। अगर जब आपके व्यक्ति के प्रति जब प्रेम होता है या कार्य के प्रति प्रेम होता है तो प्रेम के वजह से आप वो कार्य बहुत सरल रीति से करते हैं। तो मन मनाभव, मन मनाभव मना मन मेरा शांत है, फोकस्ड है। तो जो सबसे बड़ा महान मंत्र हम गीता में भी सुनते हैं, बाबा से भी सुनते हैं, वो यही है मन मनाभव। अपना मन जो है मेरे में लगाओ। कई बार जो पुरुषार्थी होते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, अर्जुना है, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है मेरे अपने मन को एक स्थान पर लगाना क्योंकि मन हमेशा ही भटकता रहता है। जब आपका मेरे प्रति प्यार है, आपका बाबा के शिक्षाओं के प्रति प्यार है, परिवार के प्रति प्यार है, तो ये सब बातें हम देखते हैं तो प्रेम के इर्द-गिर्द ही घूमती है। बहुत सरल हो जाता है मन को एक में लगाना और मैं समझती हूँ कि कई-कई सालों से आप तो इस रूहानी यात्रा पर हो और बाबा इसे ये भी कहते हैं कि ये याद की यात्रा है और इस याद की यात्रा पर आपने अनुभव किया होगा कि कैसे धीरे-धीरे हम बनते जा रहे हैं, एकदम एकाग्रचित्त, एकाग्र
की शक्ति हमारी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, जिसके कारण फिर प्राप्तियों की अनुभूति भी होती है। और बाबा कहते हैं ना कि आप अपने जो खजाने हैं, अपनी जो प्राप्तियां है, उनको यूज करो। क्यों, कैसे? जैसे जितना हम बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे, उतना हम इसको अनुभव करते रहेंगे। तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि बाबा हमें क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, और हम और अधिक क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और हम प्रैक्टिकल में इस मंत्र की शक्ति को अपने जीवन में लाए, जिसे बाबा कहते हैं मन मना भाव। ओम शांति। So that was a beautiful sharing about our new topic, and now let's hear conclusion from our dear angel, Sister Judy, about our March series. But before we do that, I just want to go through tomorrow's schedule. Tomorrow is Friday, and we have our regular schedule from Amritwala till night, and also कल का स्केड्यूल we बता have रहे Sister हैं। Prabhati during the day. And of course, we didn't do the Hindi series in month of March because we were in Madhuban and time difference. But we, as you know, that we have already started the Hindi series from today because India time it's already 1st April. So we go with the India time. So we had the first episode of our series in Hindi. So that has been started as we used to do before. So all languages are available as well in translation. तो कल से हिंदी सीरीज भी शुरू हो जाएगी। सिर्फ मार्च में हमने नहीं रखी क्योंकि मार्च में दीदी मधुबन में थे, लेकिन अभी ये फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जुड़ी बहन से सुनेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा और वो क्या कहना चाहते हैं इस मास के बारे में। Well, it is so nice, Bhumika and Didi, to have you back. बहुत अच्छा लग रहा है भूमिका बहन और दीदी आपको देखने के लिए। हमने आपको मिस किया, हमने बहुत अच्छा किया आपके नहीं थे तब, लेकिन फिर भी और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मास भी बहुत सुंदर होगा। हाँ, ओम शांति सभी भगवान के साथियों को। मुझे लगता है कि ये जो टाइटल है ये दीदी ने ही रिक्वेस्ट किया था कि हम ये टाइटल रखते हैं, और मुझे लगता है कि हमने इस टाइटल को चुना बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस तरह से दादी जानकी के बारे में सुनना और समझना, जैसे कि हम अपने बारे में ही सुनते हैं, समझते हैं। तो हमने जस्ट याद दिलाने के लिए हमने पहला भाग जो है मार्च का, वो दादी गुलजार के बारे में सुना, और वो उन्होंने क्या लाया अपने पुरुषार्थ से हमारे जीवन में। और फिर जो सेकंड पार्ट था वो हमने दादी जानकी के बारे में हमने सुना, और मैं अपनी नोटबुक्स में मैंने देखे जो नोट्स, और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो अंदर की स्थिति है उसको हमने ध्यान पर लाया, जिस स्थिति को बनाने से हम बाबा के नजदीक भगवान के साथी बनकर रह सकते हैं। अगर कोई शांत है तो आप चाहेंगे ना कि वो आपके नजदीक रहे। अगर कोई बहुत श्रेष्ठ भावना वाले, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, तो हम कहेंगे कि वो हमारे साथ रहे। और फिर सच्चाई के बारे में हमने पहले देखा, फिर हमने साफ दिल के बारे में देखा, फिर हमने दिल शांत स्वरूप और बंधनों को निकालना, डिटैच होकर रहना, बहुत ही शुद्ध इंटेलेक्ट हो, हमारी निश्चय बुद्धि हो, ये सब हमने देखा। और फिर जब हमारी ऐसी क्वालिटीज हो जाती है, बन जाती है, तब भगवान हमें अपना साथी बनाकर रखता है, या को हम बनाकर रखते हैं। लेकिन अलग-अलग हमारी क्षमताएं हैं, जिस क्षमता को बढ़ाने से हम कई सारी बातें कर सकते हैं, जो हम पहले जब वो हमारा साथी नहीं था, हम नहीं कर पाते थे।
लेकिन जब वो हमारा साथी बना तो हम वो कर सकते हैं। जैसे उसका साथी बनने से हम सहन शक्ति का यूज़ कर सकते हैं, हम दृष्टि दे सकते हैं, हम प्रकाश दे सकते हैं, हम भावना शुद्ध रख सकते हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाकर रख सकते हैं और हम जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और ये जो आखिरी रिफ्लेक्शन मुझे लगा कि मुझे एक और शाम करना है, लेकिन साइलेंस की शक्ति से हम क्या अपने में जमा करते हैं। तो 2014 में दादी का बहुत बीमारी चल रही थी, वो बार-बार बीमार हो रहे थे और मैं जहाज़ में प्लेन में उड़कर गई थी उनसे मिलने के लिए ख़ास। और अमृत वेले के समय दादी बैठे थे और मैं दादी के साथ बहुत शांति में से बैठी और अमृत वेले के बाद हंसा बहन ने उनकी कुर्सी को हिलाया, हमारी तरफ किया और फिर बहुत कम बात की, लेकिन कुछ ऐसा बोला दादी ने कि क्या कैसे हम शांति की शक्ति के द्वारा कई बातें अकम्प्लिश कर सकते हैं। उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत साफ बात की कि हमारे में ज्ञान तो है, लेकिन जो थोड़े होते हैं उन्हों को ही गहन शांति का अनुभव होता है। ये सरल नहीं है, इसीलिए ज्ञान ऐसा है जो अपनी तरफ खींचकर हमें शांति में ले जाता है। नॉलेज बहुत क्लियर है। हम 3 बार ओम शांति कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की हूँ और परमात्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और इसीलिए जब इस गहन ज्ञान की इस गहन अनुभूति में जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो शांति की भी अनुभूति होती है। तो उन्होंने कहा कि आप एक्यूरेट बनो इस धारणा में, तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा और शांति की शक्ति के द्वारा बहुत कुछ आप प्राप्त करेंगे। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति है, तो वहाँ पर जहाँ बाप है, वहाँ बात नहीं है और जहाँ बात है, तो वहाँ बाप नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को अपसेट करूँ या मैं किसी को असंतुष्ट करूँ। ये यज्ञ का नाम बाला करना है जब हम दूसरों को वो देते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है। मुझे आरसीज़ को देखकर बहुत नशा फ़ील होता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है। तो जब हम भगवान के नज़दीक होते हैं, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं शांति की शक्ति के द्वारा। और मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है कि अप्रैल मास में हम बहुत इस अभ्यास को बढ़ा सकेंगे कि शांति की शक्ति को बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सबके साथ थी और रोज़ आपको देख रही थी और मैं आगे देख रही हूँ अप्रैल मास के लिए, तो बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। Om Shanti, Sister Judy. Om Shanti, Avyakti Parivar, and Om Shanti Didi. So we would like to take this opportunity to thank you for being with us every evening and every day और addressing us मेरी बहन उनका शुक्रिया कर रही है for his sweet and loving. और And हम of course, उनके लिए एक the most ब्लेसिंग precious कार्ड treasure that Dadi लेकर आई हैं। filled with so many jewels. So thank you for sharing them with us. And thank you to all of Vikti Parivar team as well. Thank you to Didi, who not only brought us closer to Dadiji's, but she also gave the fragrance of तो Madhuban. दीदी का भी शुक्रिया, क्योंकि वो हमें सिर्फ दादियों के नज़दीक नहीं लाए, लेकिन वो मधुबन का भी हमें खुशबू रोज़ देते रहे। अव्यक्ति परिवार का भी शुक्रिया। और अभी हम सिस्टर जुडी के लिए जो वरदान है उसको पढ़ेंगे। Dear Angel Sister Judy, as a companion of God, your presence तो सिस्टर जुडी के लिए है, परमात्मा के साथी, भगवान का साथी हो आप। आपकी उपस्थिति से बहुत स्वाभाविक रीति से एक शुभ वातावरण क्रिएट होता है, जहाँ आत्माएं बहुत सरल रीति से माफी का, करुणा का, शांति का अनुभव कर सकते हैं।
ओम शांति। Om Shanti. So, welcome to the next series, Man Mana Bhava. And as Baba said in तो the अगली सीरीज जो है मन मना भाव, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे बाबा कहते हैं यही शुरुआत भी है और आखिरी भी है, और हम बाबा के इतने नजदीक आए, इतने समीप आए, तो अभी ऐसा लगता है सब कुछ बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो मन मना भाव इस तरह से ही हम एक्सप्रेस करते हैं। और जब मैं मन मना भाव के बारे में सुन रही थी, तो मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ के जो अर्ली पहले के यज्ञ के दिन है वो याद आए। एक बार जब बाबा अपने रूम में बैठे थे और वो सभी से मिल रहे थे जो बाबा से मिलने के लिए आए थे, तो हर घंटे पर एक कुमारी है, वो बाबा के दरवाजे पर नॉक करती थी और कहते थे बाबा को बहुत प्यार से, बाबा, शिव बाबा आपको याद है, आप बाबा की याद में हो? तो बाबा बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहते थे हाँ बच्ची, और वो हर घंटे फिर आकर कहती थी शिव बाबा याद है, और फिर अगले घंटे वो आकर वो कहती थी कि बाबा याद है। तो फिर जो बहन बाबा के साथ बैठी थी, तो बाबा, उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बाबा से पूछा कि ये बार बार क्यों आती है आपको ऐसे बोलने। तो बाबा ने बताया कि वो एक दिन मेरे पास आई, उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है बाबा को याद करने के लिए। तो मैंने उसको कहा कि आप हर घंटे मुझे याद दिलाना। मुझे भी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इस सीरीज में अपने मन को बार बार मुझे याद दिलाना है कि शिव बाबा याद है। तो क्योंकि मन को तो अच्छा लगता है ना यहाँ वहाँ भटकना, लेकिन हमें उसको बार बार याद दिलाना है, और होमवर्क पॉइंट्स को अमृत वेले प्रैक्टिस करना है। और ये लक्ष्य रखना है कि बस एक बाबा के ऊपर मन स्थिर रहे। 5 बार जब हम ड्रिल भी करेंगे तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे कि एक बाबा पर ही हमारा मन स्थिर रहे। और रात को हम अपने आप को 3 प्रश्न पूछ सकते हैं या चार्ट रख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, कितनी देर तक मैं एक बाबा पर फोकस रही। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या नवीनता अनुभव की, या क्या गीत मेरा मन बैकग्राउंड में गा रहा था जब मैं बाबा के साथ थी, क्या नवीनता का अनुभव हुआ। और जब हम मन मनाभव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम मन के साथ बहुत ही सुंदर संबंध बना रहे हैं। तो मुझे चेक करना है कि मैं अपने मन के कितने नजदीक आई। So we'll start tomorrow with our homework. So the first day is the blessing from the Satguru Manmana Bhava. So we'll read the homework. पहले दिन का ये ब्लेसिंग है। फर्स्ट ब्लेसिंग, पहला वरदान सदगुरु बाबा से, मन मना भाव। पिता सदगुरु के रूप में, बाप सदगुरु के रूप में अपने बच्चों को देख रहे हैं जो वरदानी मूर्त है। आप सभी भी मास्टर सदगुरु हो, सदगुरु बाप के बच्चे, जिन्होंने इस महान मंत्र को अपने जीवन में लाया है। मन मना भाव। ओम शांति। Man Mana Bhava, the first blessing of the Satguru. Man Mana Bhava, the Father, in the form of the Satguru, is looking at you children who have been blessed.
All of you are the Master Sadgurus, the children of the Sadguru, who have imbibed the great mantra. मन मना भवः सतगुरु का प्रथम वरदान। मन मना भव। बाप सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु महामंत्रधारी हो। ओम शांति।